ये एंटी इंडिया प्रोटेस्ट्स नहीं हैं, ये एंटी हिंदू प्रोटेस्ट्स हैं। आप पहले ये बात समझिए, बांग्लादेशी माइंडसेट जो रेडिकल इस्लामिस्ट माइंडसेट है, वो इट लुक्स एट इंडिया एज अ हिंदू एंटिटी, विच इंडिया इज बाय द वे, बट when they say anti-India, they mean anti-Hindu. They don't mean the geography of India. They mean Hindus everywhere. अब इनका बस नहीं चलता कि इंडिया के अंदर आके कुछ करें, इनका बस नहीं चलता। तो वहां पे जो हिंदूज को मारा जा रहा है, दे लुक एट बांग्लादेशीज हिंदूज, जो बांग्लादेश के अंदर दीपू चंद्र दास जैसे या फिर अमृत मोंडाल जैसे जो हिंदू हैं, जिनको मारा गया है, जिनकी लिंचिंग करी गई है, उन लोगों को ये लोग देखते हैं एज एन एक्सटेंशन ऑफ इंडिया, कि हिंदू यहां पे भी हिंदू ही तो बराबर हो गए। That is their mindset. That is how they are looking at it. A section of protesters in Bangladesh claim that Hadi's killers had crossed over to India. वो कह रहे हैं कि भारत में ही घुस गया मारने के बाद, high profile assassination के बाद Dhaka even sought India's help to arrest the killers, but New Delhi strongly rejected the allegation as the ties between the two countries took a further dip. अच्छा, जो ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस है वो कह रही है कि इंडिया से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये कह रहे हैं इंडिया भाग गया। मैं कह रहा हूं इंडिया भाग भी गया, इंडिया भाग भी गया। चलो, let us assume that Osman Hadi's killers have run away to India, which they have not, but let us assume, hypothetically, they have run away to India. I want to know, you want Osman Hadi's killers back, I want 3 crore Bangladeshis kicked out of India. This is what I want. What the hell are you doing in our country? Get out of here. What are you doing here? Get out. Osman Hadi, Usman Hadi, Usman. One loser you're crying about. We are crying about 3 crore losers, bhai. What is the population of Bangladesh? 17 crore, 18 crore. 3 crore तो यहां पे पड़े हुए हैं. You're crying about one loser, this guy. You're crying about one loser. We are crying about 3 crore losers who are here illegally in India. Take them back also. Meanwhile, a canteen at the heart of the university frequented by the student leaders was vandalized yesterday. Madhur canteen named after freedom fighter. A boycott slogan scribbled. अब ये मधुर हिंदू होगा पक्का, तोड़ दी कैंटीन। मैं यही बता रहा हूं दोस्तों, ये मैंने कल भी कवर करा था ना। लोग कह रहे हैं आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, मुझसे कह रहे हैं, मैं हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा भाई, ये कर रहे हैं इसलिए मैं बोल रहा हूं। आई एम सिंपली एनालाइजिंग व्हाट इज हैपनिंग, एंड जो बांग्लादेश में हो रहा है वो हिंदू मुस्लिम ही हो रहा है इसके अंदर। और इंडिया की गवर्नमेंट भी थोड़ा सा गोलमोल करके ना, कि अगेंस्ट माइनॉरिटीज जो हो रहा है वहां पे, अगेंस्ट बुद्धिस्ट, अगेंस्ट क्रिश्चियन। आपने सुना है किसी बुद्धिस्ट की लिंचिंग हो गई, किसी क्रिश्चियन की लिंचिंग हो गई? लिंचिंग हिंदू, क्लियर कट बोलना ही नहीं है, मुंह पे बोलो यार, हिंदुओं को मार रहे हैं वो, मुंह पे बोलो इनके, तुम हिंदुओं को मार रहे हो, देन डू समथिंग अबाउट इट। वी फेल्ट वेरी बैड। Bangladesh does not care if the government of India feels bad. You have to make the government of Bangladesh feel bad rather than yourself feeling bad. You need to punish Bangladesh. We are not punishing Bangladesh. We need to thrash them. जैसे कॉलर पकड़ के 4 थप्पड़ मुंह पे मारते हैं ना, वो करना है बांग्लादेश के साथ। आप लोग काम ही गलत कर रहे हैं यार। On Sunday, addressing an emergency press conference, Bangladesh's Additional Inspector General of Police, Khandakir Rafiqul Islam, said law enforcement and intelligence agencies are actively trying to trace Masood's whereabouts. We do not have specific information about his last location, but there is no confirmation that he has fled abroad. अब पुलिस कह रही है कि हमें कुछ नहीं पता, there is no confirmation, हमारे पास confirmation है ही नहीं कि कहीं विदेश चला गया है। अब विदेश कहां से जाएगा वो? या तो हवाई जहाज पकड़ के दुबई भाग गया, सिंगापुर भाग गया, मलेशिया, कहीं ना कहीं भाग गया। एक ये चीज हो सकती है। एक हो सकता है म्यांमार में चला गया, राइट। एक हो सकता है इंडिया भाग गया। क्या वो इंडिया आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। ये 3 करोड़ पागल के बच्चे यहां पे रह रहे हैं, जब ये आ सकते हैं तो वो क्यों नहीं आ सकता भाई? इंडिया ने इनको नहीं रोका तो उस हदी तुम्हारा कौन है? हदी, हु इज ही? वी कुड नॉट स्टॉप 3 करोड़ लूजर्स फ्रॉम कमिंग इन these what to the rubbish of 3 crores that has come into India. We could not stop. What about this clown, yeah, Hadi? And what makes Bangladeshis assume or think that we care about Hadi? We don't even know this guy. ये कौन है? ये हमें नहीं पता यार। ये कौन है पागल? ये हदी। तुमने इसको मारा, तुम सारे हदी मार दो यार, हमें उससे क्या लेना देना है? Interfere in Bangladesh. These Bangladeshis speak as if they are sitting on trillions of dollars of wealth. As if they've got all the oil resources in the world. As if they are geopolitically so important that people are dying to come into Bangladesh. भाई इतनी गलतफहमी मत रखो। किसी को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता, किसी को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले बांग्लादेश से यह आवाज आनी चाहिए कि जो इंडिया तुम्हें कई 100 करोड़ रुपए हर साल देता है, every year India, and I want to tell this to the leaders. I want this not from these small little pocket edition student leaders who are worth zero.
who are worth zero. मैं आगे बताऊंगा why they are worth zero. आगे की स्लाइड में लिखा है कि स्टूडेंट लीडर्स बांग्लादेश के दे आर वर्थ जीरो. बट सीरियस पॉलिटिशियन शुड से दैट वी विल नॉट टेक मनी फ्रॉम इंडिया. We will not take subsidized material from India. We will not take raw materials from India. We will not deal with India. Say that if you have the guts. ये ढफली लेके और ये देखो हारमोनियम क्यों बजा रहा है हारमोनियम है ये आदि ये क्यों बजा रहा है हारमोनियम. अपने देश की बजा के रख दी हारमोनियम यहां पे रखा हुआ है इसने. यहां पे इंडिया ने बोला है cannot be brushed aside. India response to attacks on minorities in Bangladesh issues strong warning to Yunus government. The Ministry of External Affairs on Friday issued a strong worded response to the recent incidents of violence in Bangladesh against Hindus and other minorities, warning that these could not be brushed aside as mere media exaggerations or dismissed as political violence. In the statement, the Bangladeshi government said that it has taken note of what it termed misleading information. देखिए ये कभी नहीं मानेंगे. ये आपको एक बात समझनी पड़ेगी बांग्लादेशियों के बारे में कि ओरिजिनली दे आर पाकिस्तानीज. ये आपको बात समझनी पड़ेगी. ओरिजिनली बांग्लादेशीज आर पाकिस्तानीज एंड दे हैव द सेम मॉरल फाइबर एंड द सेम सेंस ऑफ मोरालिटी एज द पाकिस्तानीज. सो इफ यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग डिफरेंट फ्रॉम बांग्लादेशीज, प्लीज फॉरगेट अबाउट इट. मैंने पहले भी रिक्वेस्ट करी थी, यू आस्क द ईस्टर्न कमांड टू गो ऑन द फ्रंट फुट. आप अपनी नेवी वहां पे एक्टिवेट करिए बे ऑफ बंगाल में, आप अपने एयरबेसेस एक्टिवेट करिए एंड पुट मिलिट्री प्रेशर ऑन बांग्लादेश. मैं आपको बता रहा हूं, आप कुछ बोलोगे, आप हिंदुओं को मार रहे हैं, कह रहे हम तो मार ही नहीं रहे. यू अंडरस्टैंड? बेसिकली इनके बाप दादा लाहौरी थे. दे हैव द सेम. देखिए ना, आप नैतिकता की बात, हमारे साथ सबसे बड़ी भारत में प्रॉब्लम है, हमारे समय नैतिकता की बात करते हैं कि यार ये सही है ये गलत है, मरे को क्या मारना. आपने सुना होगा अक्सर लोगों को कहते हुए, यार कोई बहुत जिसको पीट दिया है या जमीन पे बैठ गया, मरे को क्या, मरे को ही मारना है, मरे को ही मारना है सबसे पहले. भैया आप अपनी थ्योरी पहले राइट कर लीजिए. ये जो है ना कि मीडिया एग्जैजरेशंस और डिसमिस्ड एज पॉलिटिकल वायलेंस, यहां पे वो कह रहा है कि मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है. सीधी बात है, आपने इतना लंबा चौड़ा बयान दिया, आपने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की पूरी ये देखे साहब, आपने बोला कि ये आप हिंदूज और हिंदू यूथ एंड हिंदूज, क्रिश्चियंस एंड बुद्धिस्ट्स, more than 2,900 incidents of violence against minorities have been documented by sources during the tenure of the interim government. आप ये सब बोल रहे हैं. वो कह रहा है ऐसा हुआ ही नहीं. आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर उनके आई थिंक 9 और या 12 पता नहीं कितने आपने एयर बेसिस उनके उड़ा दिया. वो कहते हुआ ही नहीं, वो कहते हुआ ही नहीं. खुद फोटोग्राफ, खुद वीडियो खींच रहे हैं, खुद अपने इंस्टा पे डाल रहे हैं, खुद अपने टिकटॉक पे डाल रहे हैं कि ये देखो नूर खान पे गिरा, ये देखो बहावलपुर पे गिरा, ये देखो मुरीद पे. ये सारे के सारे फोटो पाकिस्तानी खुद डाल रहे हैं. पूरा फॉरेन मीडिया ये कह रहा है कि ये देखो सैटेलाइट इमेज. वो कहता हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं. ऑपरेशन सिंदूर हुआ ही नहीं. हमने सब ऐसे गायब कर दिया हवा में. ऊपर से फरिश्ते आए थे. ये जो बांग्लादेशी हैं किसके पोते हैं, किसके बेटे हैं? पाकिस्तानियों के. They think like the Pakistanis. They have the same moral fiber. There is not a moral bone in their body. They behave like this only. That is why they deserve a thrashing. हम लोग गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं बिल्कुल. यहां पे दोस्तों देखिए, ब्रिक्स, केओस, फियर, इस्लामिस्ट मॉब, रेक्स, रॉक कॉन्सर्ट इन बांग्लादेश. अब ये जेम्स है, एक सिंगर है, नगर बाउल इसको कहते हैं, बांग्लादेश का सबसे बड़ा रॉक स्टार है. तो वो किसी स्कूल के फंक्शन में आया था तो पत्थर वत्थर फेंक दिए और एट द सिचुएशन डिटोरेटेड द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन स्टेप्ड इन अराउंड 10 PM. डॉक्टर मुस्तफिर रहमान शमीम, कन्वीनर ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी, अनाउंस द स्टेज दैट द कॉन्सर्ट वाज बीइंग कैंसल्ड. और यहां पे लोग बेसिकली मौलवी मौलाना ये बोल रहे हैं बांग्लादेश में, अब उनको जमात इस्लामी का सपोर्ट मिल गया, पहले भी था, अब खुल के मिल गया. अब वो कह रहे हैं कि हराम है, ये हटाओ, ये सब हराम है, म्यूजिक नहीं होनी चाहिए, प्लेज, एनीथिंग कल्चरल शुड नॉट हैपन. There are many people in India who make the mistake. और आज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, ठीक है ना? And I'm telling all my Indian brothers and sisters who are watching this video, Bangladeshis are not Bengalis. Okay? Bengalis are different. Bengalis are different. Bangladeshis are different. When you compare Bengalis who live in India with Bangladeshis, you're insulting Bengalis. Because those losers, those Bangladeshis are nothing like Bengalis. All right? They're nothing like Bengalis. This is like chalk and cheese. जमीन आसमान का फर्क है. तो इसमें हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए. And I have told many Bengalis, मैं कलकत्ता गया था, मेरी बात हुई थी, we are speaking about Bangladesh and they told me very categorically कि मेजर साहब आप प्लीज कंपेयर ना करें, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है.
Many Bengalis have told me I've been to Calcutta many times in the past 1 year. 2025 में तो मैं 3-4 बार गया, और जब भी मैं गया हूं, 3 बार गया हूं मैं, जब भी मैं गया हूं, मुझे यही बात बोली है लोगों ने. Whenever I have a discussion that don't compare us, we are nothing like them, and they are nothing like us. We are totally different.